Hi, I'm Rasmita, and today I will discuss about transport of gases. But before going to discuss about transport of gases, we should be discuss about breathing and exchange of gases because under this human respiratory system because it is directly contact with transport of gases. So let's start. The process of exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cell is called breathing. It commonly known as respiration. So this respiration done by respiratory system. The respiratory system mostly required for multicellular organism. So respiratory system include those organ which help in ventilation. So respiration will be occur in two processes: external respiration, internal respiration. External expiration, what's happened, external respiration, breathing is occur. So breathing means inhalation, exhalation. So but internal respiration, what does it mean? What does the meaning of internal respiration? So it is count to cellular respiration. Cellular respiration means it talks about glycolysis, Tisha cycle, Krebs cycle, like this. uh, then talks about then discuss about we will discuss about breathers. Key, there are two types of breathers: water breathers and air breathers. Mainly water breathers, what's happened ki water density is high in water, so oxygen density is less. So temperature, if temperature will be increased, then what's happened ki oxygen will be decreased. So we can take example for water breathers is fish. So if the pond temperature will be increased, then the fish body temperature will be increased, then metabolism also will be increased. Means if metabolism will be increased, metabolism rate will be high, then what's happened ki metabolic oxygen demand will be also high. But what's happened in water ki oxygen ability in water is less, so fish will be die. But air breathers, what happen ki air density is very less but oxygen density is high. There is one disadvantages in air breathers ki in case of altitude, higher altitude, what's happened, partial pressure of oxygen will be decreased. Then human respiratory system. This is the structure of this is lungs, and this is trachea, and this is C-shaped cartilaginous ring. Why it is C-shaped? Because it prevents from collapse. So it is bronchioles and alveoli, and it is pleural membrane. In pleural membrane there is presence interpleural space. In interpleural space it contains pleural fluid. It Why pleural fluid is in presence intracellular place space? Because it reduces friction on the lung surface. And long situated thoracic chamber, where lung is situated, long situated thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. Then the main parts of human respiratory system is alveoli. So alveoli is the actual exchange surface for oxygen and carbon dioxide. So this is alveoli, structure of alveoli. In here what's happened ki mucus escalation means remove mucus by upward movement. तो आमर mucus टा केमती move माने जदि हम remove करिया केमती remove हबो तो upward movement रे हमर remove होची. So then it is type 1 alveolar cell, and this is type 2 alveolar cell. What's happened in type 1 alveolar cell? This is thin, flat, and cover maximum surface area. And what's the function of type 1 alveolar cell? Ki it's help in gaseous exchange. But type 2 alveolar cell, it release surfactant. The surfactant is dipalmitoyl phosphatidyl choline. It is act like detergent. It dissolve the mucus. But in alveoli there is also a present goblet cell.
What the function of a goblet cell? It will be release mucus, and mucus, what the function of mucus? Mucus trap to the dust and pathogen. If mucus will be increased, then the surface tension will be also increased. But in case of a premature neonates, what happened? Premature neonates means what? Newborn baby. Type 2 alveolar cell underdeveloped. Type 2 alveolar cell टा आमर न्यू बेबी मानकर कौन था? न्यूबॉर्न बेबी मानकर आमर underdeveloped ହେଇକିନା ଥାଏ. So mucus accumulation will be increased. So breathing problem will be also occur. Then it also known as neonatal respiratory distress. So then is mechanism of breathing. You know कि breathing is involved two stages, inspiration and expiration. What is inspiration? कि inspiration it will be occur if the pressure within the lungs mean intrapulmonary pressure less than the atmospheric pressure. माने atmospheric pressure आमर atmospheric pressure ठारू intrapulmonary pressure जदि आमर कम थिबो तो कौन हबो? ऑक्सीजन टा आमर होची आउटसाइड रो इनसाइड को से एंटर करियो. से एटा को आमर कोन कहउची ना इंस्पिरेशन बोली कहउची. देन एक्सपिरेशन व्हाट्स it will be takes place when intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. तो आमर इंट्रासेलुलर मींस लंग्स रो इंट्रासेलुलर प्रेशर जदि आमर अधिक थिबा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ठारू तो आमर कोन हबा एक्सपिरेशन हबो. तो गैस आमर कार्बन डाइऑक्साइड टा बाहर को पळेबो. Then respiratory volume, tidal volume. What is tidal volume? Na volume of air inspired or expired during normal respiration. Normal respiration रे केते हमर माने इंस्पिरेशन केते होची आउ हमर होची इंस्पिरेशन केते होची आ एक्सपिरेशन केते होची सेटा को हमर टाइडल वॉल्यूम बोली कहउची. तो हमर एवरेज हमर 500 ml हमर टाइडल वॉल्यूम हला. देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी आमे IRV बोली हमें भी कुहा जाए शॉर्ट फॉर्म रे. सो व्हाट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? कि इट एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर. इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सेबल इंस्पिरेशन. माने गोटे पर्सन माने फोर्स करी केते सी हमरो माने हमरो कोन सी इंस्पिरेशन करि पारुची हला. से आमर एवरेज कत अछि? एवरेज आमर प्राय से 2500 रु आमर 3000 ml से आमर से नहीं पारिबो इंस्पिरेशन रे. देन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आल्सो सेम. ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सेबल expiration. So average value is 1000 to 1100 ml. Then residual volume is volume of air remaining in the lungs even after a forcible expiration. गोटे forcible expiration रे जेतिक हम लंग्स रेट बाहर करछि माने केते रिमेन रहि जाउछि. देन एवरेज हम कोन से भी हम 1100 रु 1200 ml हमर एवरेज टा रहउछि ला. देन inspiratory capacity कौन ना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन. नॉर्मल एक्सपिरेशन पर से केते वॉल्यूम माने केते अमाउंट रो से एयर को इंस्पायर करि परछि. तो हमर कोन टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर देना हमर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमर पाइ जिबा. सो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी से सेम टाइडल वॉल्यूम प्लस टिके उल्टा अछि. टाइडल वॉल्यूम प्लस एटी IRV थिला एटी टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV होछि. बट वाइटल कैपेसिटी इज व्हाट? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रेथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सप्रेशन. गोटे फोर्स एक्सप्रेशन पर केते से हमर मैक्सिमम वॉल्यूम से ब्रीदिंग करि परछि. तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीनटा को हमर ऐड कर देने हमर वाइटल कैपेसिटी पाइबा. बाकी रहला टोटल लंग कैपेसिटी है ऑल टोटल्स को आमर होची ऐड कर देने समेसन कर देने हमर केते 5800 नने 6 लीटर पाखापाखि होची. देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस जे हमर डिफ्यूजन भी से हला. देन व्हाट्स हैपन? दिस इज alveoli. इन alveoli partial pressure of oxygen is 104 and partial pressure of carbon dioxide is 40. So what's happen? From alveoli the oxygenated blood is comes to
left atrium, then left atrium to it will enter to left ventricle, then left ventricle आमर आसो कौन लेफ्ट भेंट्रिकल आमर से जो ऑक्सीजन ब्लड आमर आसो टिश्यू को जीव है टिश्यू को गले ये आमर कौन हो ये अच्छे आमर 104 H partial pressure of oxygen in alveoli is 104 but in tissue level जो से आमर ये पलि आसो से आमर केते होची ना partial pressure of oxygen हो 95 104 ରୁ 95 ହେଇଯାଉଛି partial pressure of carbon dioxide आमर से जो 40 थिला से 40 ही रोची माने ऑक्सीडेटेड ब्लड बोली भाबियोनी जे केवल ऑक्सीजन ही आमर आसीबो ऑक्सीजन सहित कार्बन डाइऑक्साइड भी आमर आसुची हैला बट कार्बन डाइऑक्साइड रे अमाउंट बहुत आमर कम रहिबो लेस अमाउंट रोची आ देन आमर टिश्यू को जेतेबेला आमर ऑक्सीजन टा आमर कोन होची ऑक्सीजन टा जाउची तो टिश्यू आमर रिलीज कोन करबो एंटर होची आमर ऑक्सीजन बट रिलीज करची कोन कार्बन डाइऑक्साइड तो यार पार्शियल प्रेशर टा केते रोची पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 45 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 mmHg तो सी आमर सिस्टमैटिक वेन आमर जीव पुणी से जो राइट एट्रियम को जो राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल तापर से पुणी पल्मोनरी आर्टरी देकी से पुणी जीव आमर आल्वेओली को जाउची देन मेन थिंग्स आमर आसीगला कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस let's see what's happened transport of gases it depend upon a pigment whose pigment mainly depends upon transport of oxygen कि that pigment name is hemoglobin is fourth subunit so in adult hemoglobin टा हमर केते थाए ना कोन थाए hemoglobin टा हमर अल्फा टू बीटा टू ग्लोबिन चेन थाए बाकी हमर फेटस रे कोन अल्फा टू गामा टू ग्लोबिन चेन टा आमर रही थाए सो 1 hemoglobin बाइंड्स विथ 4 ऑक्सीजन गोटे hemoglobin हमर बाइंड्स करते केतेटा ना 4टा ऑक्सीजन सहित बाइंड करते ताने hemoglobin को जेतेबेला हम ब्रेक डाउन करी हमर कोन होची हीम प्लस ग्लोबुलिन हीम रे कोन होची प्रोफाइलिन 9 प्लस आयरन बट ग्लोबिन रे हमर कोन होची अल्फा टू बीटा टू हमर होची one hemoglobin bind with one oxygen so what's happen ki binding of oxygen with hemoglobin depends upon partial pressure of oxygen partial pressure of oxygen partial pressure केते से अनुसार डिपेंड करछि लोडिंग हो कि अनलोडिंग हो यदि partial pressure of जदि हमर hemoglobin द partial pressure of oxygen जदि हमर लो अमाउंट थिबो तने हमर अनलोडिंग हे जिवो ऑक्सीजन टा जदि हमर पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन अधिक थी हिमोग्लोबिन तो हमर कोन होची लोडिंग होची ऑक्सीजन देन हिमोग्लोबिन हमर दीटा टेंस जो स्टेट अछि गोटे हला टेंस स्टेट आ गोटे रिलैक्स स्टेट तो सो हमर टेंस स्टेट हमर कोन होची ना एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस सो देन हमर कोन ना पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई देन हमर कोन होची ऑक्सीजन टा अनलोडिंग होची केमिति होची ना हमर कोन आडल्ट मानकर अल्फा टू बीटा टू आमर ग्लोबिन चेन थाए कि से बीटा टू सहित बाइंड होता है 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसराइड बा 2,3 बीपीजीपी को कह जाए जो बाइंड होता है जोटा कि से बाइंड है मात्र बीटा टू रे आमर कौन होता है अनलोडिंग सब करए बट इन फेटस केस कौन होता है फेटस केस कौन होता है ना फेटस केस कौन था अल्फा टू गामा टू था ए गामा टू टा पाई आमर कौन होता है गामा टू सहित 2,3 बीपीजी बाइंड हो पारबनी है तो किसी टेंशन ना देन रिलैक्स स्टेट रे हमर कोन रिलैक्स स्टेट रे हमर ऑक्सीजन दा हमर कोन रिलैक्स स्टेट ऑक्सीजन दा अवेलेबिलिटी अधिक होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अधिक सो हमर कोन हबो कार्बन मोनोऑक्साइड स्टेबलाइज हे जिवो हला रिलैक्स स्टेट रे तने ऑक्सीजन दा हमर कोन हबो लोडिंग हबो देओ एटा हला हमर होची हमर पार्शियल प्रेशर एटा हला हमर गोटे कर्व होची सिगमेंटल कर्व होची हमर देखो कौन होची ना पार्शियल एठी नेची पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटा हला हमर सैचुरेशन जितेबाला हमर पार्शियल प्रेशर हमर होची 50 पर्यंत पळे आसे कोन हबो हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड विथ 2 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एक्चुअली हीमोग्लोबिन टा केतेटा ऑक्सीजन बाइंड करे 4टा ऑक्सीजन त हमर एठी हमर जो 50% सैचुरेशन हे जाउची त हमर सेतरे केते होई 4 रो हमर पळे आसी 2 ऑक्सीजन को केवल से बाइंड करी रखुची सो इफ all oxygen unloaded by hemoglobin at tissue level जो tissue level ले सब ऑक्सीजन टा अनलोडेड हे जिवो तने हमर कोन हबो मोर ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल बाय ऑक्सीजन स्टोरेज पिगमेंट
जोटा कि हम कहे मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन कौन प्रेजेंट थाए आमर मसल थाए और बाइंड करथिबे केवल मायोग्लोबिनटा केवल आमर गोटे ऑक्सीजन सहित केवल आमर बाइंड करिक रही पारे। देख तापर आमर कौन आसीबो तापर आमर आसीबो एक्लिमेटाइजेशन एट हायर अल्टीट्यूड। जिते आमर माने हायर अल्टीट्यूड को जा आमर कौन होची एक्लिमेटाइजेशन होची सेटा आमर देख हायर अल्टीट्यूड को गने आमर कौन होची ना हायर अल्टीट्यूड को गने आमर कौन होची ना हाइपोक्सिया कंडीशन आसी। व्हाट डज इट मीन हाइपोक्सिया मीनिंग कौन हाइपोक्सिया हला आमर जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टा आमर जब कम हो जाउ देन इ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेसन यदि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यदि आमर कमी जाउ तो कौन हबो ना इट एक्टिव टू द kidney then kidney will be secret kidney will be secret hypoxia inducible factor 1 alpha with the hypoxia inducible factor 1 beta then ए दुटा हमर कोन होची ना dimerase act as a transcription factor for erythropoietin then erythropoietin release from kidney रो हमर erythropoietin release हबो release हला माने हमर कोन erythropoiesis हबो hematopoietic stem cell हमर आरबीसी तैयारी करिवो देन आरबीसी प्रोडक्शन हेने हमर कोन हबो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हमर होची जे ऑक्सीजन टा जाई कि हमर इनहिबिट जे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हमर कोन होतला हाइपोक्सिया कंडीशन रे सेला हमर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टा कमी होची जेला हमर ऑक्सीजन टा हमर ट्रांसपोर्ट हमर ठीक से हे जाउची माने बढ़ी जाउची तो से जाई कि हमर इनहिबिट कर दब जाई कि हाइपोक्सिया को से जाई हमर इनहिबिट कर दोची। देन हमर देखो हाइपोक्सिया रे एठी भी लिख देछि कोन कोन होची हाइपोक्सिया कंडीशन रे कि हम देखो सेरिब्रल ब्लड फ्लोटा भी हमर सेरिब्रल ब्लड फ्लोटा हमर इंक्रीज होची आउ कैन कॉज सेरिब्रल एडेमा आउ सेरिब्रल फ्लूइड पीएच टा हमर कोन होची डिक्रीज होची बट ब्लड रे पीएच टा हमर कोन इंक्रीज हेकी दिवस सो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एट लंग्स लेवल टू रिसीव मोर ऑक्सीजन लेफ्ट साइड को शिफ्ट करिवो से जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्वटा जोटा कि हमर रिसीव करछि हमर कोन लंग्स रो अधिक अधिक ऑक्सीजन हमर रिसीव करूछि तो हमर यूरिनेशन भी होउछि यूरिनेशन हेला माने हमर कोन आरबीसी हमर होउछि कॉन्सेंट्रेट हेकी रहउछि देन हमर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन गला तो एबे हमर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखो कार्बन डाइऑक्साइड को मेनली हमर ट्रांसपोर्ट होउछि का द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड is transported in the form of SCO3 minus एटा कोन बाइकार्बोनेट में एटा हला मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड हला हमर जो हमर कोन होची ना फेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कोन प्लाज्मा रे कोन होची ना डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड तने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्लाज्मा प्रोटीन इक्वल टू कार्बामिनो कंपाउंड प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड सहित प्लाज्मा प्रोटीन टा मिक्स हमर कोन होची कार्बामिनो कंपाउंड बोली ताको हमें कह जाउची देखो हमर H2CO3 टा हमर ब्रेक डाउन हेने हमर कोन होची ना SCO3 माइनस प्लस H प्लस एटा हमर प्रोटॉन बा हाइड्रोजन आयन एटा को हमर एटा हला मेजर बफरिंग सिस्टम हला कोन SCO3 माइनस बा बाइकार्बोनेट तने कार्बन डाइऑक्साइड इन आरबीसी रे हमर कोन रहउची एटा प्लाज्मा रे गला आरबीसी रे कोन होची ना डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एसबी एटा हला हमर कोन कार्बामिनो हीमोग्लोबिन H2CO3 टा को हमर ब्रेक डाउन होइस हमर कोन होची ना SCO3 माइनस प्लस प्रोटॉन देन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फॉर्म ऑफ SO3 तो एटा हमर सबुटी हमर प्रूव हे गेला कि जे हमर कार्बन डाइऑक्साइड टा केवल ट्रांसपोर्ट हुए हमर SCO3 माइनस बाय बाइकार्बोनेट हेल्प देन हमर देखिया टिश्यू लेवल हमर कार्बन डाइऑक्साइड टा केमते हमर ट्रांसपोर्ट होई देखो एटा हला हमर टिश्यू एटा हला हमर आरबीसी तो हमर टिश्यू हमर रिलीज करछि कोन टिश्यू रिलीज करछि हमर कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एंटर करिवो आरबीसी को तने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कोन आरबीसी रे हमर कोन H2 भी थाए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 मिसी हमर कोन होछि H2CO3 तो H2CO3 टा को ब्रेक डाउन कला को हमर कोन पाइबे हमर SCO3 माइनस प्लस SCO3 माइनस टा हमर कोन हेला बाइकार्बोनेट सी हमर ये कोन करबो ना HCO3 माइनस टा हमर कोन ना आउटसाइड को पळेबो आउटसाइड हमर हेला हमर कोन एटा हेला प्लाज्मा आरबीसी रो आउटसाइड रे हमर कोन अछि प्लाज्मा तो से आउटसाइड को गने यार इक्विलिब्रियम टा मेंटेन करिया पे कोन हबो क्लोरीन टे एठी शिफ्ट करा जाय जो क्लोरीन टा हमर शिफ्टिंग होउनी क्लोरीन टा जो शिफ्टिंग होउची एठी हमर गोटे ट्रांसपोर्ट चैनल अछि एटा को हमर कोन कहउची एटा को हमर कहउची
बैंड 3 बोली एटा को हमर कहा होची पेंसिल लिखि देखा जाउ नतुवा बाकी एट जो शिफ्टिंग होची जो हमर क्लोरीन टा शिफ्टिंग होची हमर आरबीसी को एवं हमर SCO3 माइनस टा हमर जो प्लाज्मा को जाउची आरबीसी रु तो एटा हमर कहा द्वारा होची बैंड 3 द्वारा हमर शिफ्टिंग होची तो एटा को हम क्लोरीन शिफ्टिंग भी कहबा क्लोरीन शिफ्टिंग टा को मध्य हमर हैमबर्गर फेनोमेनन भी ताको हमर कह देखो सेटा हमर गला टिश्यू लेवल ले हाँ टिश्यू लेवल ले हमर होची तो हमर देखो लंग्स लेवल ले हमर कोन होची लंग्स लेवल ले हमर SCO3 माइनस बाइकार्बोनेट हमर कोन सराउंडिंग रे सब हमर कोन घुरी बुलतांती तो सी तो हमर एंट्री करबा हमर आरबीसी भीतर को से हमर कोन होची ना SCO3 प्लस प्रोटॉन सहित मिसी हमर कोन होची हाइड्रोजन आयन सहित मिसी हमर कोन होची H2CO3 माइनस या को ब्रेक डाउन करने हमर कोन होची कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O सो कार्बन डाइऑक्साइड हमर एटी पार्शियल प्रेशर रे अछि कार्बन डाइऑक्साइड केते 45 अछि सो 45 एटी हमर अल्वेओली रे हमर केते अछि 40 अछि तो हमर यार अमाउंट अधिक अछि सो केमिकल ग्रेडिएंट अनुसार हमर यार अमाउंट अधिक अछि तो हमर कार्बन डाइऑक्साइड टा आरबीसी रे हमर जीव अल्वेओली हला जदि हमर लंग्स रे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी इंक्रीज एवं जो हमर H+ आयन जदि हमर अमाउंट डिक्रीज करियो तन कोन हबो ऑक्सीजन लोडिंग टा हमर इंक्रीज हबो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोलला माने हमर कोन हबो ऑक्सीजन लोडिंग हबो ऑक्सीजन लोडिंग हेने हमर कोन हबो जदि ऑक्सीजन लोडिंग हबो एवं H+ मींस हां H+ डिसोसिएट फ्रॉम हीमोग्लोबिन एवं हीमोग्लोबिन रो H+ टा डिसोसिएट हबो जोटा कि हमर हाल्डर्स इफेक्ट भी मध्ये ताको हमर कुहा जाउची हला देन हमर हम जो रेस्पिरेशन टा हला सेटा हम तामन होची रेगुलेशन टा केमिति होची देखो रेस्पिरेटरी रेगुलेशन कि रेस्पिरेटरी रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग हमर दीटा प्रोसेस रहउची गोटे हला केमिकल रेगुलेशन और गोटे हला न्यूरल रेगुलेशन देखो एटा हमर कोन होची एटा ब्रेन टा को हमर एटा डिवाइड कराई एटा हला पोन्स रीजन एटा हला मेडुला रीजन हाँ माने एई पर्सन टू कट करना हमर कोन होची ना सिंक्रोनाइज्ड हमर ब्रीदिंग होची बाकी ए हमर पोन्स रो त तळ भाग को हमर सेठो हमर कट करना हमर कोन होची अनसिंक्रोनाइज्ड ब्रीदिंग होची बट मेडुला रो जदि हमर लोअर पार्ट टा जदि हम कट करा त नो ब्रीदिंग सो एठो हमर कोन जानिले ना ब्रीदिंग सेंटर प्रेजेंट इन ब्रेन स्टेम रे हमर ब्रेन स्टेम रे हमर ब्रीदिंग सेंटर टा प्रेजेंट रोची तना हमर पोन्स जदि पोन्स रे हमर कोन होची ना सिंक्रोनाइज ब्रीदिंग होची बाकी हमर जदि मेडुला टा हला तार मेन हला ओरिजिनल ब्रीदिंग सेंटर टा हला हमर मेडुला बिकॉज़ मेडुला ऊपर माने पार्ट टा को काटला को हमर कोन होतिला कट करला बेल को कि अनसिंक्रोनाइज हमर ब्रीदिंग होतिला बाकी मेडुला रे त लोअर पार्ट टा को हमर जदि कट करा गला हमर कोन होची नो ब्रीदिंग आ ब्रीदिंग हला नाही हला।